Okay, so in our previous lecture, we were talking about we have started this online classification, outline classification of invertebrate, and these are the different domain that we have gone. I have mentioned yesterday that these are the different category, and each category is labeled as like taxon. So these are the taxa. As I said earlier, on the upper at the upper level you find more generalization. As you go downward, you find that the uh, more specialization. We started with the eukaryota. What are the characters of eukaryota? We have worked out yesterday. We have also talked about the what do we mean by the word animalia. Then there are Animalia is a kingdom, and it has got two subkingdom, protozoa and metazoa. Which are what are the characteristics of the protozoa and metazoa? We have worked out yesterday. Uh, and metazoa character we have gone through, protozoa character we have gone through. Then we have gone through with the metazoa, mesozoa. We have talked about that they are the marine parasites of the marine. They are found in the gut of the marine invertebrate. Then we talked about parazoa that include the porifera and placozoa. As I said earlier, placozoa is not mentioned in your book, but it is there. Eumetazoa is the branch. So all these are the branch. At certain in the same book of the invertebrate that you are using in your reference material, at some location earlier, it is labeled as this category branch is labeled as the infra kingdom. So we are not using that terminology. We are आनंद कोटपाल बुक है जो बाद में जो दिया हुआ क्लासिफिकेशन वी आर फॉलोइंग दैट. दो जगहों पे क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा, तो उसमें दूसरी जगह पे दिया है बाद में दैट यू फॉलो एंड दैट यो मैंने ये आपका अगर डिस्क्रिप्शन विल बी रिमेन सेम बट देयर टर्मिनोलॉजी शुड बी दिस branch grade all this. You don't use the term infra kingdom. Why? Because as I said earlier, the different way of the classification, and this taxon and this taxa with this format have been adopted by ZSI. So we are following that. So mesozoa, parazoa, and eumetazoa are the branch. We have talked about this. We have talked about mesozoa. We have seen these slides. Parazoa we have gone through. Porifera we have gone through. Parazoa we worked out. In eumetazoa, we were talking about yesterday radiata and bilateria, and we were working out on this radiata and bilateria. Mainly radiata concerned with the radial symmetry, bilateria concerned with the bilateral symmetry. Yet echinodermata belong to bilateria, though they have the externally they have got radial symmetry. But reason is that why they are bilateria. Other than that, they have their larvae has the bilateral symmetry. Okay, so bilateria. Uh, these were the this was the comparison yesterday. We were talking this comparison we were doing yesterday. Radiata and bilateria. This comparison we are doing. So body radially bilateral symmetrical. We have done this. We have done this. So we have gone through all this. We have gone through all this. So I was talking about the bilateral symmetry yesterday, and in that bilateral symmetry, this biradial symmetry. This biradial symmetry means when you have two glands by which you can divide animal into two equal halves, then it is called the biradial symmetry. You see here, these are the example of the Ctenophora. Coelenterate like there are two phylum under the Radiata. One is Coelenterate and another is the Ctenophora. And these are the animal with the name the species also given. Say for example,
Barrow is the this is the Barrow, and it has arrangement of the organ in such a way that you can take a sagittal section or frontal section. You can divide animal into two equal halves, and that's why they are bi-radial symmetrical animals. So they both, if it is a radial or biradial, they belong to radiata. So coelenterate are the radiata. Then comb jellies, they are the radiata. They comprise the phylum of invertebrate animals that live in marine waters worldwide. They are notable for so comb jellies, ctenophore, because they are notable for group of cilia. They use for swimming, and this group of cilia is actually called comb. जो cilia होती है उसको ही comb बोलते हैं और वो लोकोमोशन में काम में आती है. And they swim fast. They are largest animal to swim with the help of cilia. इतना swim से cilia से swim अच्छा उनका locomotion होता है. And depending of the adult species, ctenophore ranges from few millimeter to 1.5 meter in size. Only 100 to 450 species have been validated. और तो इतना उतना बहुत एक्सक्लूसिव स्टडी इनका हुआ नहीं है. दे आर कॉम जेलीज और अभी तक उनकी सिर्फ 150 के आसपास ही स्पीसीज ढूंढी जा चुकी है. तो टीनोफोरा का क्योंकि आपके सिलेबस में टीनोफोरा फाइलम अलग से नहीं, इसलिए उसका डिटेल थोड़ा यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है. ओके, नाउ मूव टू द बाइलेटेरिया. व्हाट आर द बाइलेटेरिया? वी आर बाइलेटेरिया का कैटेगरी कौन सा था? सबसे पहले कैटेगरी याद रखना है, कैटेगरी भूल मत जाना. कैटेगरी हमने बाइलेटेरिया कौन सी कैटेगरी में आता है? ब्रांच ह्यूमेटस हुआ, ग्रेड, सो रेडियाटा एंड आई सर देखो आपको डोमेन तो याद रह जाएगा. डोमेन यू कैन अंडरस्टैंड. किंगडम भी याद रह जाएगा. डोमेन, किंगडम, सब किंगडम, यहां तक तो आपको याद रह जाएगा. देन यू फॉलो दिस फॉर्मूला BGD. B for BGD. B for branch, G for grade, and D for division. BGD. You always remember B for branch. Branch U matters हुआ, G grade, either is radiata or bilateria, and D is a division. तो इनके अंदर भी डिवीजन है. रेडियाटा और बाइलेटेरिया के अंदर डिवीजन है वो भी बाद में बात करेंगे. तो यू फॉलो दिस BGD टर्मिनोलॉजी. ब्रांच, यूमेटाजुआ, ग्रेड एंड डी मींस डिवीजन. सो यहाँ पे हम we are talking about the we are talking about the bilateria. So in bilateria the most animals are bilaterians excluding. तो हम bilateria जब बात करेंगे तो सारे ज्यादातर एनिमल, most of the animals are bilaterian. Sponges excluding, if you exclude sponges, if you exclude ctenophore, if you exclude porifera, plecozoa, porifera यहाँ पे आ गया, plecozoa and coelentrates, cnidarian and ctenophora, and even of course protozoa, then you have all the animals are the remaining is the your bilateria. तो मेन फीचर क्या है बाइलेटेरिया का? दूसरा फीचर क्या है? कुछ बुकों में बाइलेटेरिया और रेडियाटा की जगह पे कौन सा वर्ड यूज किया है? बाइलेटेरिया means diploblastic animal and radiata means diploblastic animal. Radiata are diploblastic animal and bilateria are the triploblastic animal. When you say triploblastic animal means they have the 3 germ layer: endoderm, ectoderm and the mesoderm. So they derive from the so bilateria have the endoderm, mesoderm, ectoderm, and except for the platyhelminthes, most have the, and if you exclude in that platyhelminthes and nematoda, then most have the true coelom. ट्रू coelom कैसा है कल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, उसकी डिस्कशन आज फिर से भी हम करेंगे. Now grade bilateria has got protostomia and deuterostomia. So now you are coming again new terminology. Bilateria was taught yesterday. Now these are two new terminology: protostomia and deuterostomia. As I said earlier, in many competitive examination, they ask you in MCQ, match the animal with the proper sequence. So, on आपको अरेंज करना होता है कि प्रोटोस्टोमिया में कौन सा आएगा, ड्यूटेरोस्टोमिया में कौन सा आएगा.
So what do you mean by protostomia? What do you mean by deuterostomia? What are the features of protostomia? What makes the particular animal to be a part of deuterostomia? So that we are going to talk. So what is bilateral again? It's a bilateral symmetric animal. Animal is organs. The digestion is complete with anus. Mesoderm is present, divided into two divisions, protostomia and deuterostomia. And this is picture from your Ayal Kotpal book. So protostomia and deuterostomia. So what is the condition number one? When you say, now there is a one pore. When you, I will teach you embryology in your TY classes. I will talk about blastocele, gastrocele. So basically what happened, there's a terminology called blastocele stage, blastula stage. Actually, during embryonic development, after zygote formation segmentation start, that is called cleavage start. First segmentation, first segmentation is two cell stage. Second segmentation is four cell stage. Such way, 8 cell stage, 16 cell stage, 32 cell stage, such cell stage, single cell get converted into 32 cell stage, 64 cell stage. So when the embryo is dividing, when the cells are dividing at particular stage in this dividing cell around 32 cell stage, in certain MN 16 cell stage, a pore within the hollow cavity develop within that the group of cell. सपोज बहुत सारे सेलों का गुब्बारा सा बन गया है, बंच बन गया है, तो उनके बीच में कैविटी जनरेट हो जाती है. उस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसिल. और वो कैविटी का बाहर की तरफ जो ओपनिंग होता है, दैट कैविटी का ओपनिंग गेट इज कॉल्ड द ब्लास्टोपोर. ये आपको मैं थोड़ा जानकारी दे दिया जो आपको टीवाई में आप पढ़ने वाले हो. दैट कैविटी का जो पोर है, दैट इज कॉल्ड द ब्लास्टोपोर. Other than that, after a certain stage, there is one more cavity that is called the primitive gut. That is called archenteron develop. That is called the archenteron. So there are two cavity, blastocele, and another cavity is archenteron. Archenteron develops in result into the our gut, and blastocele result in the body. Blastocele cavity का क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे. Sometimes it gets filled. So it depend upon the animal wise. Blastocele का result अलग होता है. So but archenteron में से हमेशा gut बनती है. Now if the blastopore, तो blastopore अभी हमें archenteron में ध्यान नहीं देना. So you just mention about तो blastocele क्या है, blastocele क्या है कि जो ग्रुप एनिमल का जो बंच ऑफ सेल बनता है उसके जो कैविटी जनरेट होती है वो कैविटी को हम बोलेंगे ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टोसिल कहेंगे, ब्लास्टोसिल. और ब्लास्टोसिल का जो ओपनिंग है उसको बोलेंगे ब्लास्टोपोर. तो अगर वो माउथ, अगर एनिमल जब डेवलप हो जाए तो वो ब्लास्टोपोर में से अगर माउथ बने, if mouth arise from the blastopore, that from if mouth arise from the blastopore, then it is the protostomia. But here in deuterostomia, mouth does not arise from the blastopore. Instead of that, anus. Blastopore में से mouth नहीं बनता, but क्या बनता है? Anus. Mouth arises entirely some distance away from the blastopore. Mouth does not result in the deuterostomia. Mouth does not occur from the that pore. So those animals are called the deuterostomia. दूसरे फीचर्स क्या है प्रोटोस्टोमिया में? बट मेन प्रोटोस्टोमिया, स्टोमिया जो वर्ड है ना, स्टोमिया, स्टोमिया रिफर्स टू माउथ. प्रोटो मींस नजदीक का, ड्यूटरो दूर का. सो प्रोटो mouth arise from the blastopore, and deutero mouth doesn't arise from the blastopore. Instead, anus result from the blastopore. Here in protostomia, coelom absent. Coelom is not there. Say for example, platyhelminthes, they are acoelomated. Yeah, both are triploblastic. One thing is clear. When you are talking about bilateria and radiata, what was the difference? Radiata were diploblastic, bilateria were triploblastic. So radiata means only endoderm and mesoderm, bilateria, endoderm, ectoderm, mesoderm. So mesoderm entry happens first time in the bilateria. Now what कितना sequence wise इन्होंने arrange किया हुआ है देखो. Now in bilateria there are two groups, protostomia, deuterostomia. कौन सा मेन आधार लिया? ब्लास्टोपोर का ओपनिंग. अगर ब्लास्टोपोर में से माउथ जनरेट हो रहा है तो प्रोटोस्टोमिया, एनस जनरेट हो रहा है तो ड्यूटेरोस्टोमिया. अब प्रोटोस्टोमिया में कौन कौन से एनिमल हैं? तो प्रोटोस्टोमिया में जो एनिमल है उनके सिलोम का भी दूसरा भी फीचर है वो सिलोम. इनमें सिलोम ट्रिप्लोब्लास्टिक तो दोनों है लेकिन सिलोम इसमें है ही नहीं. इन प्लेटीहेल्मिन्थस देयर इज नो बॉडी कैविटी, सिलोम इज एब्सेंट. उसके आगे का जो टेक्सोन आता है एस्केलमिन्थस, फाइलम सुपरफाइलम एस्केलमिन्थस, उसमें अलग अलग फाइलम है, रोटिफेरा, नीमाटोडा. तो फाइलम से फॉर नीमाटोडा, एस्केरिस,
उसमें भी सिलोम है, लेकिन उसका जो डेफिनेशन है, सिलोम का डेफिनेशन है, ट्रू सिलोम का डेफिनेशन है कि भाई वो मिजोरम में से बनना चाहिए, मिजोरम से लाइन होना चाहिए, है ना, तो वो नहीं है। ओके, तो ये जो है यहाँ का जो मिजोरम है वो कैसा है, सुडोसिलोम है। तो प्रोटोस्टोमिया इंक्लूड्स ओनली दोस एनिमल व्हिच आर एसिलोमेट एंड और आइदर सुडोसिलोमेट। सुडोसिलोम में दूसरा भी क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड में। वहां पे जो सुडोसिलोम है वो परसिस्टेंट ब्लास्टोसिल है। सुडोसिलोम क्या है, जो ब्लास्टोसिल एम्ब्रियोनिक लेवल पे बना वही ब्लास्टोसिल ने कन्वर्ट हो गया सिलोम में। ट्रू सिलोम में पेरिटोनियम कवरिंग होता है, वो पेरिटोनियम कवरिंग यहाँ पे नहीं है ट्रू सुडोसिलोम में। एंड फिर यहाँ पे है क्लेवेज जो है, और दूसरा भी है यहाँ, तीनों है यहाँ पे तीनों कैटेगरी है, प्रोटोस्टोमिया में तीनों कैटेगरी है, सिलोमेट, एसिलोमेट भी है, सुडोसिलोमेट भी है और ट्रू सिलोमेट भी है। ट्रू सिलोमेट भी है, लेकिन ट्रू सिलोमेट के जो एनिमल हैं वहां पर जो सिलोम डेवलपमेंट का थियरी है वो स्काइजोसिलस थियरी से सिलोम बन रहा है। और उनके काउंटर साइड पे देखिए डिटेस्टॉम में ओनली सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट एनिमल, यहाँ पे तीनों मौजूद है, तीनों वेरिएशन है, यहाँ पे ओनली सिलोमेट एनिमल, और उसमें जो सिलोम डेवलपमेंट का जो मैकेनिज्म है वो अलग है। यहाँ पे सिलोम मैकेनिज्म बन रहा है एंटेरोसिलस वे से। अब ये जो थियरियां हैं, दे आर टू थियरी ऑफ सिलोम फॉर्मेशन, एक्चुअली दिस आर टॉपिक ऑफ योर यूनिट 3rd, बट येट आगे की स्लाइड में मैं इसका भी डिस्कशन कर लूंगा क्योंकि हम इसके यू आर कमिंग अक्रॉस दिस टर्मिनोलॉजी फर्स्ट टाइम। यहाँ पे स्काइजोसिलस है और यहाँ पे सिलोम फॉर्मेशन है वो एंटेरोसिलस टाइप का है। Again, I am telling you, both are ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। प्रोटोस्टोमिया में से ब्लास्टोपोर है, उसमें से माउथ डेवलप होता है, इसमें से माउथ डेवलप नहीं होता, यहाँ पे एनस डेवलप होती है। दूसरा, यहाँ पे प्रोटोस्टोमिया में क्या है, सिलोम इज आइदर एब्सेंट और सुडोसिलोम और ट्रू सिलोम। लेकिन जब सिलोम ट्रू सिलोम होगा तो ट्रू सिलोम वाले एनिमल कौन से हैं, से फॉर एग्जांपल एनेलिडा, मॉलुस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सारे इस प्रोटोस्टोमिया में आ गए। तो मैं प्रोटोस्टोमिया आपको बता दूं, आपका प्लेटीहेल्मिन्थस से लेके मॉलुस्का तक, प्लेटीहेल्मिन्थस, एसिलोमेट, नीमैटोडा, सुडोसिलोमेट, फिर आपके अलग हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलुस्का, ये आपके जो मेजर फाइलम है, हम इन्हीं की बात करें तो ये सारे दिस ऑल फाइला बिलोंग टू प्रोटोस्टोमिया। तो बचा क्या, only echinodermata, if you are talking about echinodermata belong to deuterostomia, then hemichordates, Balanoglossus belong to deuterostomia, and all chordate belong to deuterostomia. All chordate belong to deuterostomia. So suppose you are classifying chordate animal, तो आपका जो lineage है ना, कहां से, यहां से हमारा रोड चेंज हो जाएगा। ये जैसा रोड है, ये हम जैसे कहीं से दिल्ली से अहमदाबाद आ रहे हैं तो जैसे रास्ते अलग अलग आते हैं कि भाई यहाँ पे लेफ्ट मुड़ जाओगे तो जयपुर आओगे, सीधा जाओगे तो अहमदाबाद का रास्ता आएगा। इसी तरह के रास्ते अलग अलग होते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने अगर किंगडम से स्टार्ट किया है तो एनिमलिया तो कॉर्डेट एनिमल में भी आएगा, सब किंगडम मेटाजोआ भी आएगा, ब्रांच यू मेटाजोआ भी दोनों में कॉमन, एनेलिडे हो या फिश हो वहां पे भी कॉमन आएगा। आपका डिवीजन ब्रांच ग्रेड दोनों बायलेटरली आएंगे, फिर फिश हो या अर्थवर्म हो वहां पे डिवीजन चेंज हो जाएगा। फिश है तो ड्यूटेरोस्टोमिया में चली जाएगी, अर्थवर्म है तो प्रोटोस्टोमिया में चला जाएगा। इस तरह से क्लासिफिकेशन में जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे बाइफर्केशन होता जाता है, स्प्लिटिंग होता जाता है, ऊपर जितना रहते उतना कॉमन रहता है। तो यहाँ पे प्रोटोस्टोमिया, सिलोम एब्सेंट और फॉल्स सिलोम और ट्रू सिलोम, बट if it is silom, it is made by schizosilom, schizosilic theory. Schizosil means splitting of mesoderm, and enterocyst means outpocketing of mesoderm. ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा। यहाँ पे है क्लेवे स्पाइरल और यहाँ पे है, one second, आपको लगता है चार्ट एक ही इतना छोटा है, लेकिन सारे टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आने चाहिए क्योंकि ये फंडामेंटल्स हैं। अब क्लेवेज, अब ये नया वर्ड है क्लेवेज स्पाइरल और डिटरमिनेंट, और ये वर्ड आपके लिए क्लेवेज रेडियल और डिटरमिनेंट। अगर मैं याद रखने को बोल लूं तो आप याद भी रख लोगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं क्योंकि आपको ये टर्मिनोलॉजी भी समझ में आनी चाहिए। क्लेवेज स्पाइरल, क्लेवेज डिटरमिनेंट,
मैं इसका एक डायग्राम बता दूं और क्लियर करता हूँ। और इसमें जो लार्वा होता है वो हमें ट्रोकोफोर लार्वे होते हैं, लार्वास एनिमल के हैं, तो इसके लार्वा होते हैं वो ट्रोकोफोर हैं। और इनके जो लार्वा होते हैं वो इधर टोर्नारिया लार्वा होता है या बाइपिनारिया लार्वा होता है। ओके, अब ये आपके लिए नया है, ये क्या सर बता रहे हो आप, हमें पता नहीं चला होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इनके डायग्राम, फिर हम और क्लियर हो जाएगा। पहले तो मैं इस पे आ जाता हूँ, क्लेवेज। उसमें क्या बोला था, देखिए ये कौन से हैं, प्रोटोस्टोमी एनिमल है, और ये है कॉर्डेज और ड्यूटेरोस्टोमी एनिमल। अब यहाँ पे हम क्लेवेज की बात करें, ये स्पाइरल क्लेवेज की बात करें और ये रेडियल क्लेवेज की बात करें। अब जैसे सेगमेंट, जैसे मान लीजिए 8 सेल स्टेज है, यहाँ पे 8 सेल, 8, एक डिवीजन होने के बाद दूसरे 2 सेल बने, दूसरा डिवीजन होने के बाद 4 सेल बने, तीसरा डिवीजन होने के बाद 8 सेल बने। तो अब आपके सामने जो सेल्स है वो कितना सेल्स का एम्ब्रियो है, 8 सेल्स का। अगर यहाँ पे आप देखो तो ये जो अगली साल एम्ब्रियोलॉजी में भी आएगा आपको, यहाँ पे जो ऊपर का टायर, 2 लेयर में सेल जुड़े हुए हैं, अपर टायर लोअर टायर, ये ऊपर के 4 सेल और नीचे के 4 सेल। अगर आपके ऊपर के 2 सेल्स के नीचे वाले सेल हैं वो 2 सेल के बराबर नीचे ना आए, देखो यहाँ पे देखो, ऊपर वाले सेल बराबर 2 सेल के नीचे ना आए, तो यहाँ पे जो है वो तो जब क्लेवेज बनेगा वो कौन सा हम कहेंगे, स्पाइरल। और यहाँ पे फिट आ जाए देखो रेडियल में, तो वो कौन सा क्लेवेज होगा, रेडियल। डिटेल में हम टीवाई में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया ये सेल की अरेंजमेंट है, अगर ऊपर नीचे एकदम फिट आ रहा है तो ये रेडियल है, तो ये रेडियल है। अब दूसरा वर्ड यहाँ पे आया डिटर्मिनेंट, और भी पहलू हैं उसमें, और भी क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर कैरमेंट वगैरह भी देखा जाता है, लेकिन हम उस स्पाइरल और रेडियल इतना आपके लिए अभी काफी है। फिर हम टीवाई में जब एम्ब्रियो पढ़ेंगे तब उसका डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक वर्ड है डिटर्मिनेंट क्लेवेज और ये है इनडिटर्मिनेंट क्लेवेज। अब ये अगर ये जाइगोट, ये 8 सेल स्टेज पे, अगर 8 सेल स्टेज पे कोई वर्टिब्रेट का 8 सेल स्टेज पे अगर किसी वर्टिब्रेट का निकाल देते हो एट 8 सेल स्टेज, अगर आप 8 एम्ब्रियो के सेल्स को निकाल के अलग अलग यूट्रस में डाल देते हो, यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर देते हैं हम बाय माइक्रो टेक्निक, तो क्या होगा, पर्टिकुलर सेल की ये एबिलिटी होती है सेल्स की। अगेन मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैंने माइक्रो फॉर्सेप लेके टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर 8 सेल स्टेज पे अगर सारे एम्ब्रियो के सारे सेल्स को मैंने डिटेच कर दिए, उनको कोई इंजरी नहीं दी, और अगर मैं किसी एनिमल के यूट्रस में, मतलब कि अगर ये मेरा डॉग का एम्ब्रियो है तो डॉग के चार फीमेल डॉग में, अगर मैं 8 फीमेल डॉग में अगर मैं ये एम्ब्रियो को ट्रांसफर करता हूँ तो क्या होगा, रिजल्ट के 8 में प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। That means a single, and at this stage single cell has ability, single cell has at this stage single cell has the ability to generate entire embryo. It has total potency and all are equally potent, all are equipotency, all cells are equally potent, but these actually remain up till particular state. So at this, so these cells are called the इनडिटर्मिनेट, अभी उनका डिसाइड नहीं किया। हाँ, अगर लेकिन ये साथ में रहेंगे तो ये हमेशा एक ही एम्ब्रियो जनरेट करेंगे, लेकिन मैं इनको अलग अलग कर दूंगा पर्टिकुलर स्टेज तक, तो दे विल बी कैन गिव राइज टू सेपरेट प्रोजेनी, सेपरेट यंग वन। अब इसमें क्या है, इसमें जाइगोट एक में 2 हो गए, वहीं से ये खत्म हो गई एबिलिटी। आपने इनको यहाँ के, अगर आपने यहाँ के जो सेल है मॉलस्क का या आर्थ्रोपोडा में अगर मैं ये एक्सपेंड करने जा रहा हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दे आर द डिटर्मिनेंट सेल। अगर मैंने 2 सेल्स को भी डिटेच करके अलग अलग जगह पे ट्रांसप्लांट किया अलग अलग में, तो वहां पे जनरेट नहीं होगा एम्ब्रियो, बिकॉज दे आर डिटर्मिनेंट। उनका साथ में पहले स्टेज से पहले सेगमेंट जैसे साथ में रहना जरूरी है। So these are these cells. This is type of cleavage called determinant cleavage, and these are the indeterminate. वो कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे है। तो प्रोटोस्टोमिया कैसे है, उसमें स्पाइरल और डिटर्मिनेंट क्लीवेज है, इसमें रेडियल और इंडिटर्मिनेंट क्लीवेज है। सिलोम फॉर्मेशन बता दूं। अब सिलोम, अब हम बात कर रहे थे बार बार स्काइजोसिल, अगर पहले इसकी बात कर लें, उसके पहले आता है सुडोसिलोम। अब यहाँ पे एक सुडोसिलोम का डायग्राम मैंने रखा है, देख लेते हैं। सुडोसिलोम, हाँ, ये रहा सुडोसिलोम और एसिलोम का डायग्राम।
देखो अब ये डायग्राम जो आपके सामने है उसमें देखो एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट और सिलोमेट तीनों पॉसिबल हैं प्रोटोस्टोमिया में। ड्यूटेरोस्टोमिया में ओनली सिलोमेट। तो ड्यूटेरोस्टोमिया की बात आ रही है तो ये सारे ड्यूटेरोस्टोमिया में आएगा। प्रोटोस्टोमिया में तीनों आ सकते हैं। कल वाला मैं डायग्राम बताया था एसिलोमेट एनिमल, प्लेटीहेल्मिन्थस है वो एसिलोमेट है। तो उसमें क्या है कि डाइजेस्टिव कैविटी है वही कैविटी है, बाहर एक्टोडर्म है, ये गट है और ये सारा मीजोडर्म है। अब मीजोडर्म के बीच, मीजोडर्म के अंदर कोई कैविटी बची नहीं है। प्लेटीहेल्मिन्थस, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, ये सारे एनिमल हैं। वो कैसे होते हैं? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट एनिमल होते हैं, जैसे लीफ होता है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर, उस तरह के एनिमल हैं। तो यहाँ पे बीच में कोई कैविटी बची ही नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे? एसिलोमेट। इसको हम क्या कहेंगे? एसिलोमेट। यहाँ पे कैविटी डाइजेस्टिव कैविटी है, तो यहाँ पे कोई कैविटी है ही नहीं। तो यहाँ पे एक्टोडर्म, एक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी, एंडोडर्म है और प्लेटियम है। तो ये एसिलोमेट हो गया क्योंकि इसमें सिलोम नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है और ये एंडोडर्म है। ये मसल से घिरा हुआ, यहाँ पे दिखाया नहीं है लेकिन इस तरफ भी, इस बाजू भी मसल मीजोडर्म होता है। तो यहाँ पे क्या है? मीजोडर्म, यहाँ पे मीजोडर्म, यहाँ पे भी ट्यूब डाइजेस्ट गट है तो उसका बाहर का हमेशा मीजोडर्म का होता है। तो मीजोडर्म और मीजोडर्म से घिरा हुआ अंदर का जो है, तो यहाँ पे जो कैविटी है, ये जो कैविटी है वो आपका सिलोम हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, ट्रू सिलोम बता रहा था। ये एक्टोडर्म है, ये मीजोडर्म है और यहाँ पे भी बताया हुआ है। देखो यहाँ पे मसल्स बताया है और यहाँ पे भी मसल्स बताया है। देखो यहाँ पे भी मसल्स बताया और यहाँ पे ये बोथ आर दी, ये दोनों क्या है? मीजोडर्म। एम लिख रहा हूँ, एम स्टैंड्स फॉर मीजोडर्म। तो यहाँ पे मसल्स है, यहाँ पे मसल। तो मैंने कंडीशन क्या कही थी ट्रू मीजोडर्म, ट्रू सिलोम होने के लिए कि भाई वो दोनों तरफ से मीजोडर्म से घेरा कन्फाइन होना चाहिए, उसको आंसर का दोनों तरफ से मीजोडर्म करना चाहिए। तो वो कंडीशन है फॉर बीइंग अ ट्रू सिलोम। तो यहाँ पे ट्रू सिलोम है, यहाँ पे डायग्राम में देखो ये गट है और गट के बाहर एक मसल्स लेयर बताया हुआ है, वो मीजोडर्म का है और यहाँ पे भी मीजोडर्म है बाहर भी, और बीच में जो कैविटी है वो सिलोम दे दिया, तो ये सिलोम है, तो दिस इज ट्रू सिलोम। अब सीडोसिलोम में क्या है? कैविटी तो है, यहाँ पे गट है, यहाँ पे कैविटी है, लेकिन यहाँ पे अंदर के डायग्राम में, स्कीमेटिक डायग्राम में देखो तो अंदर की तरफ का जो लेयर है वहां पे कोई मीजोडर्म बताया नहीं है। यहाँ पे मीजोडर्म सिर्फ एक ही एंड पे है, तो हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। सिलोम तो है लेकिन, तो इस सिलोम को हम क्या कहेंगे? सूडोसिलोम। क्यों? बिकॉज इट नॉट कन्फाइंड बाय मीजोडर्म ऑन आइदर साइड, इट इज नॉट कन्फाइंड बाय मीजोडर्म एंटायरली। दूसरा, दिस मीजोडर्म, दूसरा कंडीशन क्या है कि ये आपका सिलोम है, वो मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बना होना चाहिए या तो फिर उसका आउटपॉकेटिंग से बनना चाहिए। अगर स्प्लिटिंग से बना तो स्काइजोसिलस हो गया, आउटपॉकेटिंग से हुआ तो एंटोसिलस हुआ। यहाँ पे जो सिलोम है वो मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से नहीं होता, बल्कि जो आपका एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिल कैविटी है वो ही पूरे एडल्ट तक परसिस्ट करता है। एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिल जो कैविटी है, एम्ब्रियोनिक कैविटी, वो ही हमेशा सिलोम के तौर पे एक्ट करता है। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ ट्रू सिलोम। ब्लास्टोसिल एक्ट एज अ सिलोम हियर एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सूडोसिलोम। यहाँ पे मीजोरम स्प्लिटिंग से नहीं बना, इसलिए भी ये क्या है? सूडोसिलोम है। तो ये एग्जाम में समझ में आ जाएगा आपको। तो निमेटोडा सूडोसिलोम है, प्लेटिहेल्मिन्थस सिलोमेट है और ये है ट्रू सिलोमेट बाकी के एनिमल। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ गए थे यहाँ पे। अब सिलोम, ट्रू सिलोम की बात करें तो उसमें भी दो थियरी हैं, आइदर एनिमल कैन बी स्काइजोसिलस सिलोमेट और एंटेरोसिलस सिलोमेट। अब इसको हम ऐसा होगा तो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ इसका पार्ट पहुंच जाए तो नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ एक ही पार्ट रहे। तो मैं फिर से अपनी स्लाइड पे आता हूं। उसमें कौन कौन सी कंडीशन थी देखिए। तो हमने क्या क्या कंप्लीट किया कि भाई ब्लास्टोपोर्स तो मैंने समझा दिया आपको। मैंने ये आज सिर्फ हमने इतना ही समझा, प्रोटोस्टोमिया और डिटेरोस्टोमिया क्या है। नए जो डिवीजन आए तो दो डिवीजन में सारे वर्ल्ड के एनिमल हैं, आगे के एक्सक्लूड कर दे तो आइदर वो प्रोटोस्टोमिया में आएंगे या डिटेरोस्टोमिया में आएंगे। अगर प्रोटोस्टोमिया में है तो ब्लास्टोपोर, और यहाँ पे है तो इसमें ब्लास्टोपोर में से माउथ जनरेट होगा, अगर इसमें है तो एनस जनरेट होगा।
सिलम जो है, यहाँ पे तीनों जात के सिलम हो सकते हैं। आइदर एनिमल एसिलोमेट हो सकता है, आइदर एनिमल एसिलोमेट हो सकता है, आइदर सिलोम जो है वो एनिमल है वो एसिलोमेट हो सकता है, या सूडोसिलोमेट हो सकता है, या ट्रूसिलोमेट हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो वो हमेशा ट्रूसिलोमेट होगा। यहाँ के एनिमल की बात करें तो वहां के एनिमल में मतलब कि एनालिडा है, उसमें सब में क्लेवेज होगा, तो कैसा होगा, स्पाइरल होगा और डिटर्मिनेंट होगा। यहाँ पे हम आ जाएं तो यहाँ पे हमेशा क्लेवेज रेडियल क्लेवेज ही होगा और इनडिटर्मिनेट होगा। यहाँ पे अगर लार्वल स्टेज एनिमल में होता है तो वो ट्रोकोफोर लार्वा होगा। अगर यहाँ पे लार्वल स्टेज है वो तो टोर्नारिया या बाइपिनारिया लार्वा होगा। अब उसके भी मैं लार्वा के फोटो आपको बता देता हूँ, आपको डायग्राम बनाना नहीं है, देखना भी ऐसे आपकी समझ के लिए। ये है बहुत ही सीलिया वाला जो लार्वा होता है, ये ये है ट्रोकोफोर लार्वा। ये डायग्राम है ट्रोकोफोर लार्वा का है। देखो ये डायग्राम है, वो है टोर्नारिया लार्वा का है। ये टोर्नारिया लार्वा, इतना ये टोर्नारिया लार्वा है, और ये है ये स्लाइड बनाई हुई है बाइपिनारिया लार्वा है। ये बाइपिनारिया लार्वा तो ये सब लार्वल स्टेजेस एकाइनोडर्माटा में आप लोग टीवाई में अरे पूरा टॉपिक आता है लार्वल स्टेजेस इन एकाइनोडर्माटा, उसमें आप पढ़ने वाले हो। तो ये कंडीशन हो गई। अब थोड़ा इसमें समझाना जो बाकी है वो ये रह जाता है, तो मैं 5 मिनट बाद 7-8 मिनट के ब्रेक बाद ये रिकॉर्ड हो जाए, उसके बाद मैं फिर से एक लिंक भेजूंगा एंड विल कंटिन्यू। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन। somebody wrote that अच्छा समझ में आ रहा है, थैंक यू। You take the uh, you take the